کہ مرنے سے پہلے ہم مسلمان کر لے اس پہ غور. کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور. کہنے کو تو تھی سب کا اسلام ہے، لیکن کتابوں کا جہاں اور ہے، بابوں کا جہاں اور. ہم بابا فرید چکر گنج کو بہت زیادہ مانتے ہیں. ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ معجزات ہوتے ہیں، لیکن معجزات ہر طرح کے معجزات نہیں ہو سکتے. اور سب سے پہلی چیز کے ہاتھ اوپر چلے گئے، انشاءاللہ رفع یدین بھی شروع ہو جائے گا. آج کی اس ملاقات کے بعد مجھے لگ رہا ہے کہ رفع یدین معاشرے کو چھوڑیں. اور انہوں نے بالکل میری بات سنتے. سب سے پہلی بات یہ کہ وہ تو جہنمی ہے، وہ تو جیل میں ہے، تو سیدھا تو وہ کی ویڈیوز ہیں وہ جو ان سے ہیکے لگا لگا کے گاؤں کے اندر کر رہے ہوتے ہیں، اپنا بیان کر رہے ہوتے ہیں. اس کے اندر ایک بھی حدیث ایسی نہیں تھی، کوئی بات ایسی نہیں تھی کہ جس سے میں امپریس ہو کے میں کہتا کہ یار مجھے سمجھ آتی ہے یہ بات. کہوں گا کہ جی کوئی درگاہ کی طرح بڑے اسپرچل ہو جاتے ہیں. نہیں، بالکل ایسا نہیں ہے. بڑی نارمل سا ایک ہال ہے، ایک کلاس روم والا ماحول ہوتا ہے. ایک ٹیچر آتا ہے، آ کے اپنا سیمینار کرتا ہے، اور پھر اس کے بعد اس کو انٹریکٹیو کرنے کے لیے آپ کے سوالوں کے جوابات دیے جاتے ہیں. جو لوگ صبح آئے تھے ان کو بٹھا کے ناشتہ کروایا، خود ناشتہ کیا. تو اس کے بعد مجھے لگا کہ بس دیٹس اٹ. ناشتے کے بعد پھر انہوں نے دوبارہ چائے کے لیے بلایا. چندہ تو نہیں دیا آپ نے؟ 1 روپیہ بھی نہیں. کوئی پولیٹیکل بات نہیں، کسی قسم کا کوئی ایجنڈا نہیں، کسی قسم کے کوئی پرسنل بینیفٹ نہیں، کوئی پرسنل گین نہیں. السلام علیکم بھائی جان. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. کیا نام ہے بھائی جان آپ کا؟ احتشام جاوید. احتشام بھائی. احتشام بھائی کدھر سے آئے ہیں؟ میں جی لاہور سے. لاہور سے آئے ہیں. اچھا جی، آپ کا سابقہ فرقہ کون سا تھا؟ جی مجھے یہ تو نہیں پتا. میرا خیال ہے کہ ہم اہل سنت ہی تھے. اچھا. لیکن یہ آج سے کوئی 4 سال پہلے 5 سال پہلے میں نے انجینئر صاحب کی ویڈیوز دیکھنا شروع کی، اور مجھے پتا چلا کہ مسلمان ہونا زیادہ ضروری ہے بجائے اس کے کہ ہم کسی سیکٹ کے اندر رہیں. اور دوسرا جو میری لائف میں سب سے بڑا چینج آیا کہ مجھے اہل بیت کی اصل پوزیشن پتا چلی کہ ان کا اصل مرتبہ کیا ہے. اور اس کے بعد سے لے کے ابھی تک میں اپنے آپ کو صرف ایک مسلمان ہی کہلواتا ہوں. That I'm a Muslim and I don't belong to any sect. تو الحمدللہ آج میرا پہلا وزٹ تھا after 5 years of my journey with انجینئر علی مرزا، اور مجھے ان کے سیشن کے اندر بہت اچھا لگا. میں اور میرا چھوٹا بھائی آئے ہیں and he came from Canada. لیکن یہ بڑا ایک کمال کا ایکسپیرینس تھا, and I highly recommend to all people that if they can afford to come over here they should. اور خاص کر کے جو آپ کی ٹیم ہے میں اس کو بھی کانگریچولیٹ کروں گا کہ they are very hospitable. مجھے ایک سیکنڈ کے لیے بھی کوئی بندہ روڈ نہیں لگا. everyone is very welcoming, so thank you very much. دیکھیے یہ بندوں کی اپنی اپنی رائے ہوتی ہے نا. یہی بعض بندے تو کہتے ہیں جی آپ کے اسٹوڈنٹ آپ کی انتظامیہ بڑی بدتمیز ہے, تو ہمارے لیے باعث فخر ہے جی آپ کے یہ سارے تعریفی کلمات. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. اچھا یہ بتائیے گا آپ انجینئر صاحب تک کیسے پہنچے آپ, یہ بھی تو بتائیں نا ذرا, یہ بھی تو ایک اسٹوری ہے. سو بیسکلی کچھ چیزیں جب میں واقعات سنتا تھا, کیونکہ ہم جس ہاؤس ہولڈ میں تھے وہاں پہ ہم بابا فرید چکر گنج کو بہت زیادہ مانتے ہیں. تو میں جب یہ کچھ معجزات سنتا تھا تو بینگ اے سائنس اسٹوڈنٹ, بیکاز میں خود ایک ایروسپیس انجینئر ہوں, تو مجھے وہ کچھ چیزیں سمجھ نہیں لگتی تھی کہ نہیں ایسے پاسبل نہیں ہے, مطلب ایسے کیسے ہو سکتا ہے. معجزات ہوتے ہیں لیکن معجزات ہر طرح کے معجزات نہیں ہو سکتے, اور معجزات ہر انسان نہیں کر سکتا, ہر دور میں نہیں ہو سکتے. تو بس اس چیز سے میں تھوڑا تنگ پڑتا تھا. پھر مجھے ایک دوست نے انٹروڈیوس کیا کہ آپ ان کو سنو. ایک دوست, ہاں جی, تو یو مائٹ لائک اٹ. تو میں نے وہی کی, میں نے بس پھر ایک ویڈیو سے دوسری ویڈیو, دوسری سے تیسری, چوتھی, پانچویں, پھر 5 سال گزر گئے اور ماشاءاللہ بہت کچھ سیکھا. بات سمجھ میں آنا شروع ہو گئی. سب پہلی ویڈیو سے سمجھ آنا شروع ہو گئی. کون سی تھی پہلی ویڈیو؟ میرا خیال ہے کہ وہ مجھے اب اس طرح سے یاد نہیں ہے, میں ایسے جھوٹ بولوں مجھے یاد نہیں کون سی ویڈیو تھی. تو یہ میری جرنی رہی ہے جی وہ رہا. ماشاءاللہ. اچھا یہ بتائیں کہ نماز اب کیسے پڑھ رہے ہیں؟ نماز جی, اچھا میں آپ کو ایک چیز بتا دیتا ہوں جی بتائیں, شیئر کریں ہمارے ساتھ. نماز ابھی تک جہاں تک میں پہنچا ہوں وہ اپنی جرنی میں ہے کہ میں نے ہاتھ اوپر باندھنا شروع کر دی. اچھا ہاتھ اوپر باندھنا, ابھی میں رفع یدین تک نہیں پہنچا, ابھی نہیں پہنچا, لیکن میں نے ہاتھ اوپر باندھنے شروع کر. اچھا ہاں جی ٹھیک ہو گیا. ابھی رفع یدین تک نہیں پہنچے, تو کیوں نہیں پہنچے؟ بس ایک بچپن سے عادت ایک طریقے سے نماز پڑھنے کی, شاید اس لیے میں کمفرٹیبل نہیں. کمفرٹیبل والی تو بات ہی نہیں ہے نا, سنت جب لینی ہے آپ 100% ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ اوتھینٹک ایک مطلب ثبوت ہے, حدیث ہیں,
लेकिन एक होता है प्रैक्टिकल नमाज का तरीका है। मैं बिलीवर हूँ कि जो चीज मुझे दिल से जब तक समझ नहीं आती तो मैं तब तक उसको, लेकिन देखे कि सबसे पहली चीज के हाथ ऊपर चले गए, इंशाल्लाह रफा यदैन भी शुरू हो जाएगा। आई एम श्योर आज की इस मुलाकात के बाद मुझे लग रहा है कि रफा यदैन माशरे को छोड़ें, ये कोई दलील तो नहीं है ना यार, बचपन से कानून दिल नहीं मान रहा। बात ये है कि ये देखना है कि रसूलुल्लाह ने पढ़ी तो छोड़े सब। देखे ये एक जर्नी है ना, मैं अपनी जर्नी के पता नहीं उस हिस्से पे हूँ कि जहाँ पे अल्लाह ताला भी सब मेरे से हाथ ऊपर करवाए हैं अल्लाह ताला ने। हो सकता है आने वाले दिनों में मैं रफ़ा यदैन भी स्टार्ट कर दूं। बिल्कुल सही है, लेकिन तहकीक तो करें। बिल्कुल तहकीक की है, बिल्कुल की है, और उसको मैं 100% ऑथेंटिक कह रहा हूँ। प्रैक्टिकल आप वो जो उन्होंने रेफरेंस दिए हैं वो उसको देखें 100%। क्या है, अगर तो वो है एग्जिस्ट करते हैं तो फिर तो आपको मानना पड़ेगा। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा, इसका मतलब ये है कि अभी आप भी नहीं कर रहे तो घर वाले भी नहीं कर रहे होंगे? नहीं, बाकी घर वाले जो है मेरी वाइफ करती है। अच्छा, वो करती है? हाँ जी, वो करती है। फिर तो मसला ही हल है। मेरी वाइफ बिल्कुल करती है जी, रफ़ा यदैन भी करती है। वो कैसे करती है? और जैसे करते हैं नहीं, वो करने की वजह क्या है? सॉरी, वो भी मेरे साथ, हम बेसिकली जी हम शाम को जब सोने से पहले इंजीनियर साहब की वीडियोस देखते हैं तो वो हम इकट्ठे देख रहे होते हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली इस वजह से उसने करना। अच्छा, उससे पहले उनका ऐसा कोई तल्लुक नहीं था? नहीं, वो भी जैसे मैं एक अहले सुन्नत हाउस होल्ड में बड़ा हुआ, सीख के किया ना जी, सीख के किया। देख ले, चले इंशाल्लाह मैं भी आहिस्ता आहिस्ता पहुंच जाऊंगा जी वहाँ पे। सही हो गया। तो बाकी तौहीद वगैरह घर वालों की सारी अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, इस दावत हक को आपको पता है जीरे साहब के बयान आज सुनना शुरू करो ना तो आपको पता है लोगों के बारे में जो मतलब इनके बारे में लोगों का जो नजरिया है ना, वो कोई कुछ कह रहा होता है, वो कुछ कह रहा होता है, तो आपको भी सुनने को मिला कुछ इस तरह की बात? जी बिल्कुल 100% मिला है। मैं जी बताता हूँ, अभी मेरे ताया की वफात पे हम घर पे थे तो वहाँ पे इसी तरह ही अहले बैत पे बात होना शुरू हुई, तो मैंने 2-3 रेफरेंसेस इंजीनियर साहब की वीडियो के दिए और उनके दलाइल के दिए। ठीक है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो अगले वाले वो जो हमारे भाई थे उनको ये बात पसंद नहीं आई और उन्होंने बिल्कुल मेरी बात सुनते सबसे पहली बात ये कि वो तो जहन्नमी है, वो तो जेल में है, तो सीधा तो वो तो जी एक फितना है जो हमारी आज की नस्ल को खराब करे। मैंने खैर फिर उनके ताया का कौन सा था फिरका? ताया भी अहले सुन्नती थे, लेकिन वो उनके दामाद, वो उनके दामाद थे, उनकी तो वफात हो गई ना, तो उनकी वफात पे ही हम इकट्ठे हुए थे। और वो मेरा ख्याल है कि बरेलवी हाँ जी, तो वो उन्होंने काफी कुछ कहा। अच्छा। लेकिन उसके बाद मैंने उनसे कहा कि ठीक है, हो सकता है वो गलत हो सकता है गलत हो, हर इंसान मतलब गलती कर सकता है, कोई ऐसा मसला नहीं। आप एक काम करें कि जो मैंने रेफरेंस आपको दिया है, हाँ। मुझे आप उसके ऊपर सॉलिड कोई आर्ग्यूमेंट किसी भी स्कॉलर का दे दें तो मैं उसको कबूल कर लूंगा अगर वो ठीक हुआ। हाँ, ये तरीका है ना। तो वो उन्होंने 10-15 दिन गुजर गए इस बात को, अभी तक मुझे 5 या 6 वीडियोस भेजी हैं। अच्छा। और वो उन मौलवियों की वीडियोस हैं वो जो उनसे हेके लगा के गाँव के अंदर कर रहे होते हैं, अपना बयान कर रहे होते हैं, उसके अंदर एक भी हदीस ऐसी नहीं थी, कोई बात ऐसी नहीं थी कि जिससे मैं इम्प्रेस होकर मैं कहता कि यार मुझे समझ आती है ये बात। पढ़े लिखे बंदे को ऐसे कैसे इम्प्रेस करोगे यार? बिल्कुल ऐसी अनफॉर्चुनेटली ये बड़ा एक प्रॉब्लम है। और उसके अलावा क्या कहते हैं, मेरी वालदा को काफी सारी चीजें डॉक्टर ये इंजीनियर साहब को समझ नहीं आती थी। किसी एक वीडियो में इन्होंने ये कहा था कि औरत को दुपट्टा लेने की जरूरत नहीं है अजान के वक्त। अब मैंने वो वीडियो नहीं देखी, लेकिन वो मेरी वालदा ने कहीं देख ली थी, तो उनको ये बात उनकी समझ नहीं आई। हाँ, समझ नहीं आई वो ये ऐसे नहीं था। लेकिन आप ये देखें कि उन्होंने हमें यहाँ आने से मना नहीं किया। हाँ। उन्होंने बिल्कुल कहा, उन्होंने कहा ठीक है अगर आप लोग जाना चाहते हो वो इस तरह नहीं था, वो ये था कि भी वो होता है बाद दफा अजान तो होती है तो दुपट्टे लेना शुरू कर देती है, तो मैंने कहा था ये तो वैसे ही लेना चाहिए, वैसे इस तरह बात थी कि वो अजान को स्पेशल तो नहीं है कि तुम अजान तो हर वक्त मोस्ट प्रोबेबली, लेकिन शायद उन्होंने किसी और कॉन्टेक्स्ट में आप उनको दोबारा सुनाएं। सुनाएं उनको दोबारा, ऐसी बात इंजीनियर साहब ने कभी कुछ नहीं की। सही होगा। तो आज फर्स्ट टाइम आए थे? आज मैं फर्स्ट टाइम आया, मैं इनफैक्ट जेलम ही जिंदगी में पहली दफा आया। अच्छा, जेलम ही। और आपने आज दर्स लाइव सुना तो क्या फील किया, ये भी तो बताएं। इट्स अ वेरी डिफरेंट एक्सपीरियंस। मैं ये देखिए, मैं इसको ये नहीं कहूँगा कि जी कोई दरगाह की तरह आप बड़े स्पिरिचुअल हो जाते हैं, नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। बड़ी नॉर्मल सा एक हॉल है, एक क्लासरूम वाला माहौल होता है, एक टीचर आता है आके अपना सेमिनार करता है और फिर उसके बाद उसको इंटरेक्टिव करने के लिए आपके सवालों के जवाब दिए जाते हैं, और उसके बाद ये एक बड़ी पॉजिटिव वाइब है। देखें, सबसे पहले आते ही आपको ग्रीट किया जाता है, क्योंकि हमें ये बताया गया था कि हमने जल्दी आना,
तो मैं सुबह 9 बजे अपने भाई के साथ यहाँ पहुंच गया था। तो मेरे लिए जो सबसे पहली सरप्राइजिंग बात ये थी कि आपकी टीम ने जो लोग सुबह आए थे उनको बिठा के नाश्ता करवाया, खुद नाश्ता किया। देख ले। तो उसके बाद मुझे लगा कि बस दैट्स इट। नाश्ते के बाद फिर उन्होंने दोबारा चाय के लिए बुलाया। चंदा तो नहीं दिया आपने? 1 रुपया भी नहीं, चाय के लिए बुलाया। और ये अपनी जेब से करवाते हैं। हाँ जी, मैं बताने लगा कि वो नाश्ता भी कोई ऐसा कोई आम नाश्ता नहीं था कि आपने बस उठ के सुबह सुबह किसी जगह से कोई चाय रस खा लिए। फिर बहुत अच्छा खाना था, बहुत अच्छा नाश्ता था। अच्छा, उसके बाद चाय सर्व की, चाय के बाद पानी सर्व किया। उसके बाद उन्होंने कहा जी अब आप इजी हैं, रिलैक्स्ड हैं, तो आप यहाँ बैठ जाएं। जाके हम बैठ गए। उसके बाद इंजीनियर साहब का वेट हुआ। ड्यूरिंग द वेट उन्होंने फिर दोबारा पूछा कि आप चाय पियेंगे। खैर हम वेट करते रहे। उसके बाद जब इंजीनियर साहब आए, क्लास के एक सेट रूल जिस तरह से नॉर्मली होते हैं उस तरह से रूल सेट किए गए। उसके बाद इंजीनियर साहब ने क्लास अटेंड की, 2.5-3 घंटे। हाँ जी, क्लास ली। उसके बाद उन्होंने जो क्वेश्चंस थे उनको बिल्कुल बड़े अच्छे तरीके से क्वेश्चन आंसर सेशन किया। और एंड पे उन्होंने सबसे पूछा कि जी किसी बंदे का सवाल अगर रह गया जो मेरे पास नहीं पहुंचा तो मैं अभी भी यहाँ पे अवेलेबल हूँ, अगर आप मेरे से पूछना चाहें तो मैं अवेलेबल हूँ। तो लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह देयर वाज नो सच क्वेश्चन दैट वाज नॉट आंसर्ड। उसके बाद उन्होंने बड़े तरीके से, बहुत डिसिप्लिनरी तरीके से उन्होंने with a lot of discipline they asked us to move in a straight line। और फिर बारी बारी एक एक बंदा जो यहाँ मौजूद था उन सब की तस्वीरें खींची गई उनके साथ। और बड़े ही अच्छे तरीके से everyone was requested to leave the premises after it was done। कोई पॉलिटिकल बात नहीं, किसी किस्म का कोई एजेंडा नहीं, किसी किस्म के कोई पर्सनल बेनिफिट नहीं, कोई पर्सनल गेन नहीं। तो माशाल्लाह इट वाज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस ओवरऑल। सर आपको ये इंशाल्लाह ताला आपने अगर तो बुखारी मुस्लिम पढ़ी है, आप सल्लम की रवायतें पढ़ी है, तो ये आपको जो आपको पढ़ी होंगी ना, तो यहाँ पे आपको माहौल भी नजर आए। जी मैं ये आज सुबह यहाँ पे साहब बैठे हुए थे, वो ये चीज को जो है ना वो इस चीज का कह रहे थे अपने सहाबा के साथ उस तरह। फिर उसके बाद हमारे पीर तो वो है ना जो खुद अपनी जेब से लगाते थे, हाँ इनसे लेके खाते नहीं थे। और यही आपको इधर भी देखने को मिलेगा। जी बिल्कुल ऐसे, ठीक है, कोई चंदा बुक नहीं, कुछ नहीं, नाश्ता भी अपनी जेब बिल्कुल ऐसे। अभी आपको आप देखेंगे समोसा चाय फिर सर्व हो रहा है अपनी जेब से। हाँ जी सर कौन करता है? बिल्कुल ऐसी नहीं। यहाँ पे जितने लोग हैं और जितने लोग मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, ये कोई वो टिपिकल मौलवियों वाला स्टाइल नहीं है। यंग लड़के हैं, वॉलंटियर्स हैं, और आई एम 100% श्योर ये अपनी बाकी जिंदगी में और काम भी करते होंगे। और ये संडे जैसे आप यहाँ बैठे हुए आप भी वॉलंटियरली ये काम कर रहे हैं, तो इट्स अ वेरी, हाँ जी, काम में तो अपना काम करते हैं। इट्स अ वेरी डिफरेंट एक्सपीरियंस ओवरऑल। बट यस, एक चीज को आपने कैमरे वीडियो पे देखा होता है, यूट्यूब पे देखा होता है सो मेनी इयर्स, लेकिन मैं जब एकदम से एंटर हुआ और मेरे सामने वही दीवार है, तो मैं थोड़ी देर के लिए थोड़ा सा शॉक हुआ कि ये यार इट्स द सेम थिंग दैट आई वॉच एवरी नाइट फॉर द पास्ट 4 years 5 years। तो मेरे लिए थोड़ा शॉकिंग था। कुछ देर के लिए तो मुझे कुछ समझ ही नहीं लगी कि मैं पहुंच गया हूँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ओवरऑल इट वाज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। चलिए जज़ाकल्लाह, अच्छा लगा जी आपसे बात करके। लाइकवाइज, अस्सलाम वालेकुम। और फिरकों की दुकानें बंद, द डैमेज डन।